Hello, Assalamu alaikum, everyone. I think we are good to start today's session. And in today's session, let's first cross check that what we have done in our last session. So we were on operating system. We discussed about the operating system. That operating system is having multiple functions: batch processing, file handling, utility software management. After that, we also discuss about the file management, the device management, the memory management, the process management, security management, utility software, disk defragmentation, file compressor, and multiple utility softwares we discussed in our last session. And it was a small chapter. We ended the chapter in the last session. आज हम लोग start करने जा रहे हैं. Today we are going to kick off with a new chapter, and this chapter class is called assembly language. This chapter class is called assembly language, and this is one of the most अगर क्लास ये चैप्टर ना आपका दो तरह टर्न आउट हो सकता है. This chapter can be turned out to be the most easiest chapter in the in paper one, in whole paper one, and this chapter can be turned out to be the most difficult chapter of paper one as well. तो अब ये आपके ऊपर है, अगर आप लोग के कॉन्सेप्ट्स, आप लोग के अंडरस्टैंडिंग, आप लोग की चीजें बिल्कुल क्लियर हैं, up to date हैं, up to mark हैं, then this chapter is going to be the easiest chapter in your P1. And it can be turned out to be the most difficult chapter अगर आप लोग ने इसके अंडरस्टैंडिंग, इसके कॉन्सेप्ट्स आपने करेक्टली डिफाइन नहीं करे, तो this chapter can be turned out to be the most difficult chapter of paper 1. ठीक है, so start करते हैं हम लोग यहाँ पे आज, और starting with the first part. And whenever we talk about assembly language, so assembly language is actually a low level language. This language class directly deals with registers. और आप सबको पता है क्लास के what are registers? Registers are actually a small portion of memory और आप लोग को एक और बात भी पता है यहाँ पे that the registers, whenever we deal with the registers, so the execution is fast. So same goes with the assembly language. If this language is directly dealing with registers, the execution of this language is very fast. And further, this language class needs to be converted into machine code because computer only understand one language, and that language is machine language. Okay, so this language needs to be converted into machine code using assembler. So assembler is actually the translator that translates translator that translates assembly language into machine code.
ठीक है, तो हम लोगों ने क्लास यहाँ पे कुछ बेसिक बातें करी अबाउट द असेंबली लैंग्वेज, that this language is a low level language and this language directly deals with registers. Registers क्या होते हैं? Small portion of memory and the execution is fast. This language needs to be converted into machine code because computer only understand one language, that is the machine language. Now moving forward, moving ahead, let me write down one of the instruction in front of you. अब मैं आप लोग के सामने एक assembly language का क्लास इंस्ट्रक्शन लिखने जा रहा हूं. So let's see this instruction and let's see how we are going to deal with this language. Starting off with, the first thing that you should know is called addressing modes. Now what is addressing modes? What is addressing modes? The addressing modes are actually how we are going to access our memory. हम अपनी मेमोरी क्लास किस तरह एक्सेस करेंगे? How we are going to access our memory, that is counted in addressing modes. There are around 6 addressing modes आपके सिलेबस के अंदर. कितने एड्रेसिंग मोड्स हैं? There are around 6 addressing modes आपके सिलेबस का पार्ट है. ठीक है, starting off with the first addressing mode, and class, that addressing mode is called immediate addressing. This addressing mode class is called immediate addressing. Class, let me write down one of the instruction in front of you. मैं एक assembly language का instruction आपके सामने लिखता हूं. Let's say this is one of the instruction of assembly language, LDM #100. So class, this is one of the instruction of assembly language. अब ये assembly language के instruction के अंदर मैं आपको बिल्कुल प्रॉपर्ली हर चीज बताता भी रहता हूं साथ साथ. This is assembly language instruction. ठीक है, this instruction class consists of 2 parts. The first part is this one and the second part class is this one. तो ये 2 पार्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करता है आपका असेंबली लैंग्वेज का इंस्ट्रक्शन. द फर्स्ट पार्ट क्लास इज कॉल्ड, दिस वन इज कॉल्ड ऑप कोड. क्या कहलाता है ये? दिस इज कॉल्ड ऑप कोड. एंड द सेकंड पार्ट क्लास इज कॉल्ड, द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड ऑपरेंड. The second part is called operand. Now, when we talk about opcode stands for operational code. Opcode stands for operational code, and operand class stands for oh, it does not stand for, it's a full meaning. Now, what is opcode? Opcode class is actually the instruction of assembly language. ये क्या होते हैं? Instruction of assembly language. And operand class क्या होता है? This is actually the address. अब जाहिर सी बात है, कोई इंस्ट्रक्शन है, कोई ना कोई एड्रेस के ऊपर वो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म किए जाएंगे ना. तो operand is actually address, or it sometimes it is acting as a value, or sometimes it is also acting as a data. Value, data, you can call it same, vice versa. So operand is actually class the address or value or data. And opcode क्या होता है आपके पास? Instruction of assembly language.
तो असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ऑपकोड एंड ऑपरेंड. द फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड ऑपकोड एंड द सेकंड पार्ट इज कॉल्ड ऑपरेंड. ऑपकोड क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं. ऑपकोड क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होते हैं. और ऑपरेंड क्या होता है क्लास? ऑपरेंड इज एक्चुअली द एड्रेस. ठीक है. नाउ moving forward, now let's talk about immediate addressing. तो इमीडिएट एड्रेसिंग क्लास क्या होती है आपके पास? इमीडिएट एड्रेसिंग क्लास क्या होती है आपके पास? इन दिस एड्रेसिंग नो मेमोरी इज इन्वॉल्व्ड. आपकी कोई मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होती. ऑपरेंड, यू गाइस नो ऑपरेंड क्या है? अब एड्रेस या फिर वैल्यू. तो ऑपरेंड इज एक्टिंग एज अ वैल्यू. ऑपरेंड इज एक्टिंग एज अ वैल्यू. एंड क्लास इसके अंदर हम लोग करते क्या है? वी कॉपी ऑपरेंड in our ACC. And you guys know what is ACC? ACC is actually your accumulator. तो क्लास आफ्टर परफॉर्मिंग दिस इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करने के बाद यू गाइज नो आपके पास एक रजिस्टर होता है. दैट रजिस्टर इज कॉल्ड accumulator. That register is called accumulator. The value of accumulator class will be 100. So the whatever the value is defined over here, whatever the value is defined in the operand, that value is copied in accumulator. This is called immediate addressing. ठीक है. LDM stands for class load memory, but आप लोग को इसकी फुल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है. आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं है. You just need to have an understanding कि भाई assembly language के you are having two part. The first part is called opcode and the second part is called operand. Opcode is the instruction of the assembly language and operand is actually the address. So immediate addressing के अंदर क्या होता है? हमारे पास कोई मेमोरी इन्वॉल्व नहीं होती. ऑपरेंड जो होता है आपका, इट्स एक्टिंग एज अ वैल्यू. वी कॉपी द ऑपरेंड इन आवर accumulator. So whatever the value is in operand, that value is copied in our accumulator. अब जरा मुझे बताएं आप लोग, अब मुझे बताएं क्लास, लेट्स एज्यूम दैट दिस इज योर accumulator. दिस इज योर accumulator. और मैंने यहां पे एक इंस्ट्रक्शन लिखा क्लास LDM #28. क्लास व्हाट विल बी द वैल्यू इन accumulator? मुझे जरा आप लोग बताएं मैक चैट के ऊपर लिख के, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ माय accumulator? So I am receiving multiple answers. Sufyan, Manur, Tamima, Talha, Irtiza. ठीक है. So the value of my accumulator class will be 28 because this is immediate addressing and whatever the operand is, that operand is copied in my accumulator. ठीक है. Now let me check again if you have any questions till now, or we are good to move forward. अर्शक मैंने आपको बता दिया लोड मेमोरी. जी हदीद बेटा बिल्कुल. ओके, सो फार वी आर गुड. जी हदीद बेटा बिल्कुल. every instruction will be having हाँ, every instruction class will be having two parts. The first part will be the opcode and the next part will be the operand. ठीक है. और immediate addressing के अंदर whatever the operand is, that operand is copied in our accumulator. ठीक है. Let's move forward. आगे बढ़े हम लोग क्लास यहाँ पे. Let's move forward. हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पे. Let's see. Now class, the next addressing class is called direct addressing. The next addressing class is called direct addressing.
नाउ बिफोर आई एक्सप्लेन यू क्लास डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है, बिफोर आई एक्सप्लेन यू दिस स्टफ, रमल बेटा बिफोर आस्किंग क्वेश्चन देखे ना, मैंने लिखवाया तो है आपको, इट्स रिटन ओवर हियर कि ऑपरेंड कैन बी अ वैल्यू और इट कैन बी एन एड्रेस। या तो एड्रेस होगा या फिर क्या होगी, वैल्यू होगी। ठीक है, या तो एड्रेस होगा या फिर क्या होगी, इट विल बी अ वैल्यू, और कुछ नहीं हो सकता इसके अलावा, बिल्कुल। ठीक है, ऑपरेंड विल बी अ एड्रेस और इट विल बी अ वैल्यू, नथिंग मोर देन दैट। अच्छा जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। मैं क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़ा यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा क्लास यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्ट एड्रेसिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन क्लास बिफोर एक्सप्लेनिंग डायरेक्ट एड्रेसिंग, कुछ बच्चों ने थोड़ा सा लेट ज्वाइन की है, सो दे वर आस्किंग कि सर प्रीवियसली क्या हुआ है। तो आपको मैं अभी डायरेक्ट एड्रेसिंग क्लास एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली आपको इमीडिएट एड्रेसिंग भी क्लियर अप अगेन हो जाएगी। ठीक है, मैंने आपके सामने क्लास क्या करी, एक मेमोरी ड्रॉ करी। क्या करी, मैंने आपके सामने एक मेमोरी ड्रॉ करी। क्लास मेमोरी के अंदर ना हमेशा दो चीजें होती हैं। मेमोरी के अंदर हमेशा क्या होती है, आपके पास दो चीज होती हैं। द फर्स्ट पार्ट क्लास इज कॉल्ड डाटा, एंड द नेक्स्ट पार्ट क्लास, डाटा या डाटा को हम लोग कंटेंट भी कहते हैं, वी कॉल इट वैल्यू एज वेल। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पार्ट क्लास इज कॉल्ड लोकेशन। ठीक है, सो मेमोरी क्लास इज ऑल्सो ऑलवेज हैविंग क्लास टू स्टफ। एक होती है उसकी लोकेशन और एक होती है आपका डाटा कंटेंट, या फिर यू आर हैविंग द वैल्यू। ठीक है, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट, लेट्स अज्यूम दैट मेरे पास यहां पे एक मेमोरी थी। द मेमोरी लोकेशंस वर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006 एंड सो ऑन। क्लास एट 1001 मेरे पास यहां पे रखा हुआ था मेमोरी के अंदर, लेट्स से मैक। 1002 में क्लास मेरे पास रखा हुआ था यहां पे, लेट्स से हसन। 1003 पे क्लास मेरे पास रखा हुआ था लेट्स से 20। 1004 पे क्लास मेरे पास रखा हुआ था लेट्स से 1007। 105 पे क्लास मेरे पास रखा हुआ था लेट्स से -100 एंड 1007 पे क्लास मेरे पास रखा हुआ था लेट्स से 200। सो क्लास दिस इज माय मेमोरी। मैंने आपके सामने एक मेमोरी ड्रॉ कर दी। ठीक है, मेमोरी इज ऑलवेज हैविंग, मैंने आप लोग को ये बात भी बता दी, memory is always having two parts. The first part is called the memory location और second part the content या data या value होती है भाई मेमोरी के अंदर। अब क्लास नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डायरेक्ट एड्रेसिंग। सो मैंने यहां पे स्टेटमेंट लिखी एल डी हैश 1003। तो क्लास आप लोग को अच्छी तरह पता है ये फर्स्ट पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज योर ऑप कोड। ये क्या कहलाता है, ऑप कोड। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड योर ऑपरेंड। दिस इज योर ऑपरेंड एंड ऑप कोड। अब प्लस डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता है आपके पास, यू आर हैविंग वन ऑफ द रजिस्टर दैट इज कॉल्ड accumulator. You are having one of the register class that is called accumulator. So class whatever the operand is actually acting as a address. In the direct addressing, operand is acting as a address. आप इस एड्रेस के ऊपर मूव करते हैं, क्या करते हैं, आप इस एड्रेस के ऊपर मूव करते हैं, और इस एड्रेस के ऊपर मूव करने के बाद इस एड्रेस के जो भी कंटेंट्स होते हैं क्लास, whatever the contents are there at this address, these contents are copied in your accumulator. These contents class are copied to your accumulator. So class this is called your direct addressing. This is called your direct addressing. जो भी आप लोग को ऑपरेंड गिवन है, that is actually an address
we move towards that address and we copy the contents of that address in our accumulator. ठीक है, तो ये डायरेक्ट एड्रेसिंग क्लास मैं आप लोगों को वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखवा देता हूं. ये डायरेक्ट एड्रेसिंग क्लास मैं आप लोगों को वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखवा देता हूं. सो व्हाट इज डायरेक्ट एड्रेसिंग? ऑपरेंड is acting as an address. जो आपका ऑपरेंड होता है क्लास, दैट इज एक्टिंग एज एन एड्रेस. We move to that address. We move to that address and copy the contents. Copy the contents of that address in our accumulator. So class, this is called direct addressing. ये क्या कहलाती है आपके पास? This is called direct addressing. This is called your direct addressing. तो क्लास डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या हुई हमारे पास? डायरेक्ट एलडीडी की फुल फॉर्म होते हैं हमारे पास लोड डायरेक्ट डाटा. लेकिन अगेन आई टोल्ड यू बिफोर कि आप लोगों को ये इसकी फुल फॉर्म के अंदर जाने की जरूरत नहीं है हुसैन. ठीक है, अभी मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा. अभी जो मैं आप लोगों को ये एलडीडी एलडीएम ये सब लिखवा रहा हूं, ये सब चीजें पेपर में गिवन होती है. एवरीथिंग इज गिवन, यू जस्ट नीड टू ट्रेस आउट द स्टफ. आपको सिर्फ ट्रेसिंग करनी होती है और कुछ भी नहीं करना होता. लेकिन मैं आप लोगों को पूरा भी प्रॉपर्ली एक दफा पहले करवा रहा हूं. आप लोग के कॉन्सेप्ट्स, आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर अप करवा रहा हूं. वंस द अंडरस्टैंडिंग एंड द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, देन हम लोग फिर इसके अंदर आगे भी बढ़ेंगे. ठीक है, तो क्लास अब अगर मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं एंड माय क्वेश्चन इज फ्रॉम लेट्स से मिशा या मोहम्मद अली खान आफरीदी. मिशा या मोहम्मद अली खान आफरीदी, आप दोनों से सवाल है. अगर अब मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिखता हूं, लेट्स से द इंस्ट्रक्शन इज LDD 100 hash 1007 and this is my accumulator. This is my accumulator. So what will be the value in my accumulator? What will be the value in my accumulator? इर्तिजा ने क्लास हमें यहाँ पे जवाब दे दिया, लेकिन आई एम वेटिंग फॉर द आंसर. सो परफेक्ट, मोहम्मद अली खान ने भी क्लास हमें यहाँ पे जवाब दे दिया. उन्होंने बोला कि सर देखिए जरा, आपने अभी हमें थोड़ी देर पहले बताया था कि ये हमारा एड्रेस है, हम इस एड्रेस के ऊपर मूव करेंगे. whatever the value is in this whatever the content this memory is having, that value is going to copy that value is going to be copied in our accumulator. So it will be having 200. So class, this was about the direct addressing. ठीक है, आफ्टर डायरेक्ट एड्रेसिंग क्लास हम लोगों ने यहाँ पे दो एड्रेसिंग मोड्स देख लिए. वन इज कॉल्ड इमीडिएट, जो भी ऑपरेंड है आपका, जो भी ऑपरेंड है, that value is copied in our accumulator. And second we have seen direct addressing. We move to the address, हम एड्रेस के ऊपर मूव करते हैं और एड्रेस के ऊपर मूव करने के बाद whatever the contents are there, we copy those contents in our accumulator. अब क्लास जो एड्रेसिंग है, let's see this addressing is called, this addressing class is called इनडायरेक्ट. अच्छा, कंप्यूटर साइंस की सबसे अच्छी बात बताऊं क्या होती है क्लास? कंप्यूटर साइंस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वट एवर द वर्ड है, तो आधी डेफिनेशन तो आपको वर्ड को देख के ही पता चल जाती है कि व्हाट्स द डेफिनेशन बिहाइंड दैट स्टफ. ठीक है, सो नाउ क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस इनडायरेक्ट एड्रेसिंग. लेट्स सी. और व्हेन आई टॉक अबाउट क्लास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, सो मैंने क्लास यहां पे जल्दी से काम क्या किया, मैंने यहां पे जल्दी से क्लास अगेन आई कॉपी द
स्टफ, मैंने कहा यहाँ पे जल्दी से वैल्यू आपकी यहाँ पे कॉपी करवा ली, वही अपना रजिस्टर, वही मेमोरी मैंने यहाँ पे कॉपी करवा ली, सो दैट आई कैन वर्क अराउंड दिस मेमोरी अगेन। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्लास एज द नेम सजेस्ट, आप लोग कॉपी नहीं करें इंतजाम, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा फाइल पूरी, ठीक है, आफ्टर द लेक्चर्स, ठीक है। ठीक है, आई विल बी शेयरिंग द हार्ड कॉपी, सो ओ सॉरी सॉफ्ट कॉपी, सो यू गाइस कैन कॉपी आफ्टरवर्ड्स। अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, अभी चीजों को समझो। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, हम लोग क्लास आगे बढ़े यहाँ पे अब। एंड नाउ क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। और मैंने यहाँ पे क्लास आप लोग के सामने एक स्टेटमेंट लिखवाई अगेन। द स्टेटमेंट इज एल डी LDI एंड लेट्स से क्लास मैंने यहाँ पे बता दिया LDI हैश 1004, ठीक है। तो क्लास नाउ वी आर गोइंग टू डील विद इनडायरेक्ट एड्रेसिंग एंड अगेन यू नो आप लोग के पास क्या होता है, आप लोग के पास होता है एक अदद एक्यूमुलेटर। यू गाइस आर हैविंग क्लास वन एक्यूमुलेटर, so let's see what this indirect addressing class does। क्लास सबसे पहले जो आपका यहाँ पे ऑपरेंड है, दिस ऑपरेंड इज एक्चुअली एक्टिंग एज एन एड्रेस, ठीक है। ये ऑपरेंड क्या होता है आपका, इट्स एक्टिंग एज अ फर्स्ट एड्रेस। यहां पे आपके पास दो एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं क्लास इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर, ठीक है। कितने एड्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं, वी आर हैविंग टू एड्रेसेस। तो क्लास पहला एड्रेस जो है आपका यही होता है, आप लोग क्या करते हैं, whatever the address is you are going to move towards that address, आप उस एड्रेस के ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। तो क्लास दिस वाज योर फर्स्ट एड्रेस, ये क्या था आपका, ये आपका पहला एड्रेस था, फर्स्ट एड्रेस, ठीक है। अब क्लास इस एड्रेस के ऊपर आने के बाद यू कैन सी कि द कंटेंट्स ऑफ दिस एड्रेस आर दिस। तो क्लास द कंटेंट ऑफ द फर्स्ट एड्रेस, the content of first address act as a second address। तो क्या ये जो कंटेंट होते हैं क्या, ये आपके पास एक्चुअली दे आर वर्किंग एज अ सेकंड एड्रेस। तो अब आप लोग क्या करते हैं, अब आप लोग सेकंड एड्रेस के ऊपर मूव करते हैं। तो द सेकंड एड्रेस विल बी 1007। मैं क्लास मूव करके आया अपने सेकंड एड्रेस के पास, तो दिस वाज माय सेकंड एड्रेस एंड we copy the contents of the second address, in our accumulator. So class, what value will be copied in our accumulator? The value class that will be copied in our accumulator will be 200। अब I know आप लोगों के जहनों में ये क्वेश्चन जा रहा होगा, आप लोग के माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा, सर ठीक है आपकी बात हमें समझ में आ गई, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होती है। जो भी आपका फर्स्ट एड्रेस है, आप फर्स्ट एड्रेस के ऊपर जाते हैं, जो फर्स्ट एड्रेस के जो कंटेंट होते हैं, इट एक्ट एज अ सेकंड एड्रेस, वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड एड्रेस एंड वी कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द सेकंड एड्रेस इन आवर एक्यूमुलेटर। सर ये बात आपकी बिल्कुल हमें समझ में आ गई, और ये बात आपकी हम लोग कहते हैं इसे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। हम इसे क्या कहते हैं, वी कॉल इट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। लेकिन सर इट डज नॉट मेक एनी सेंस, सर व्हाई नॉट वी कैन यूज डायरेक्ट एड्रेसिंग ओवर हियर। सर हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग यूज कर लेते हैं और हम लोग डायरेक्टली 1007 को कॉपी करवा देते हैं एक्यूमुलेटर के अंदर। हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्यों इन्वॉल्व कर रहे हैं? तो क्लास द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वी आर इन्वॉल्विंग इनडायरेक्ट एड्रेसिंग ओवर हियर। क्लास यहाँ पे मैंने आप लोगों को सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया मैंने आपको, ठीक है, जस्ट टू क्लियर अप योर कॉन्सेप्ट, जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे किया है। एक्चुअल के अंदर क्लास क्या होता है, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग हम लोग कब इन्वॉल्व करते हैं, लेट मी शो यू।
लेट मी शो यू कि व्हेन वी इन्वॉल्व इन डायरेक्ट एड्रेसिंग, असल में आपके पास क्या होता है, योर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पोर्शंस, डिफरेंट पार्टीशंस, ठीक है। तो क्लास कभी कभार ये होता है कि हमें एक पार्टीशन से मूव करके दूसरे पार्टीशन के पास जाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, कभी कभार हमें एक पार्टीशन से मूव करके हमें दूसरे पार्टीशन के पास जाना पड़ता है। तो जब भी हमें ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है कि वी नीड टू मूव द पार्टीशन टू पार्टीशन, देन वी इन्वॉल्व इन डायरेक्ट एड्रेसिंग। फिर हम लोग डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते, जब हमें पार्टीशन टू पार्टीशन मूवमेंट चाहिए होती है, तो देन वी इन्वॉल्व इन डायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। So that was the use of the indirect addressing, but the concept remains same. The concept remains same. So class, this is the concept of indirect addressing. अब एक और आप लोग के जहनों में सवाल चल रहा होगा, that question must be, और तमीमा ने क्लास वो लिख भी दिया वो बात। तो क्लास तमीमा ने लिखी है यहाँ पे वो बात कि सर अगर मैं यहाँ पे ये करूं, आप लोग बड़े फास्ट फॉरवर्ड बच्चे हैं भाई, आप लोग फौरन आगे की बातें शुरू कर देते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिखूं LDI हैश 1007, तो सॉरी 1001, तो क्लास सर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में अपने एड्रेस के ऊपर मूव किया मैंने, दिस वाज माय एड्रेस। तो सर ये तो एज अ सेकंड एड्रेस काउंट नहीं हो सकता, अब क्या करूं? तो क्लास दिस इज एक्चुअली एन एरर, दिस सिचुएशन विल बी कॉजिंग यू एन एरर, कि जो आपका सेकंड एड्रेस है वो it is not an error, or sorry, it is not an address, it's an string value, so it will return you an error बेटा, ठीक है। आपको एरर रिटर्न कर देगा। और जाहिर सी बात है कंप्यूटर, हम लोग इस तरह की हरकत करेंगे क्यों? क्योंकि अगर हमें पता होगा कि हमें इनडायरेक्ट एड्रेसिंग इन्वॉल्व करनी है, तो हम वहां पे एड्रेस ही रखेंगे। लेकिन अगेन अगर वहां पे कोई एड्रेस नहीं है, तो इट्स गोइंग टू रिटर्न यू एन एरर बेटा, ठीक है। So class, this is called your indirect addressing. अब जरा मैं यहाँ पे एरोज वगैरह मिटाता हूँ, मैंने कुछ एरोज वगैरह यहाँ पे मिटाए, और लेट्स सी। अब मैंने क्लास यहाँ पे कुछ चेंजेस कर दी थोड़ी सी। लेट्स से द चेंजेस वर, और आई परफॉर्म वन ऑफ द स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखी, द स्टेटमेंट वॉज LDI हैश 1003 एंड दिस इज माई एक्यूमुलेटर क्लास, दिस इज माई एक्यूमुलेटर। तो मुझे बताएं क्लास, व्हाट विल बी कॉपीड इन माई एक्यूमुलेटर, व्हाट विल बी कॉपीड क्लास इन माई एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो क्लास परफेक्टली क्लास एवरीवन नोज द आंसर, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। आप लोगों ने मुझे बताया कि सर वी आर गोइंग टू मूव टू दिस एड्रेस, this is our first address, the content is going to act as a second address, we are going to move towards class the second address, and we are going to copy -100 in our accumulator, ठीक है। तो क्लास दिस इज व्हाट इनडायरेक्ट एड्रेसिंग डज, ठीक है। तो क्लास मैंने यहाँ पे आप लोग को इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में प्रॉपर्ली लिखवा भी देता हूँ। द कॉन्टेंट्स ऑफ द फर्स्ट एड्रेस एक्ट एज अ सेकंड एड्रेस, एंड वी कॉपी the contents of second address in our accumulator, ठीक है। तो क्लास दिस इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग बेटा, दिस इज कॉल्ड योर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग, ठीक है। सो लेट मी आंसर फ्यू क्वेश्चंस, मेरे पास यहाँ पे कुछ बच्चों के सवाल आए हैं, लेट मी आंसर दैट। सर अगर 200 की जगह इर्तिजा लिखा होता, तो इर्तिजा बेटा आपके सवाल का जवाब मैंने बिल्कुल दिया है, और तमीमा ने भी सेम सवाल किया था कि हमारे पास सर अगर हम यहाँ पे 1001 एक्सेस कर लेते, ठीक है, तो जाहिर सी बात आपको क्या रिटर्न करेगा, वो फिर एरर रिटर्न कर देगा बेटा, ठीक है। इट्स गोइंग टू रिटर्न यू एन एरर इन दैट केस, ठीक है। अगर आपके पास जो सेकंड एड्रेस है वो एड्रेस नहीं है, वो भाई कोई वैल्यू है, या इट्स सम स्ट्रिंग वैल्यू दैट इट कैन नॉट बी एक्टेड एज एन एड्रेस, so
what it going to return? It's going to be returned an error to you. ठीक है? So अब हम लोग क्लास आते हैं अपनी आखिरी एड्रेसिंग के पास. बिल्कुल इर्तिजा वाले केस में भी एरर होगा, और जो हमारे पास तमीमा ने सवाल किया था उस केस में भी क्या होगा, एरर होगा आपके पास. ठीक है? अब हम लोग क्लास आते हैं टू द लास्ट स्टफ, एंड क्लास दिस एड्रेसिंग इज कॉल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग. दिस एड्रेसिंग इज कॉल्ड इंडेक्स एड्रेसिंग. क्लास अगर आप लोग को थोड़ी आप लोग की मेमोरी अच्छी हो, जो कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग की मेमोरी बड़ी शार्प है, अच्छी है, तो मैंने आप लोगों को इंडेक्स एड्रेसिंग के बारे में कहीं डिस्कस किया था. लेट मी शो यू दैट. मैं क्लास जब आप लोगों को वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पढ़ा रहा था, आई वाज टीचिंग यू वॉन न्यूमन. तो वॉन न्यूमन पढ़ाते पढ़ाते मैं आप लोगों को कुछ कहां गए मैं आप लोगों को रजिस्टर्स के बारे में पढ़ा रहा था. एंड वन ऑफ द रजिस्टर क्लास वाज इंडेक्स रजिस्टर. वन ऑफ द रजिस्टर वाज इंडेक्स रजिस्टर. और जब मैं आप लोगों को ये रजिस्टर पढ़ा रहा था तो मैंने आप लोगों को इसके बारे में कुछ लिखवाया था, और मैंने आप लोगों को एक पॉइंट लिखवाया था. मैंने बताया था कि भाई मैं आप लोगों को ये रजिस्टर अभी नहीं पढ़ाऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा. एंड आई टोल्ड यू कि दिस रजिस्टर इज यूज्ड इन इंडेक्स एड्रेसिंग. तो क्लास वही इंडेक्स एड्रेसिंग अब आपके पास यहाँ पे, वही इंडेक्स एड्रेसिंग क्लास अब यहाँ पे आप लोग के पास इन्वॉल्व हो गई है. जी तमीमा बेटा, बिल्कुल ऐसे ही होगा. ठीक है? तो क्लास व्हेन वी टॉक अबाउट इंडेक्स एड्रेसिंग, सो अगेन ये देखिए क्लास मैंने कितनी जल्दी ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, और मैंने क्लास यहाँ पे पूरी अपनी वापस से एक मेमोरी ड्रॉ कर ली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास इंडेक्स एड्रेसिंग. क्लास इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर वी आर हैविंग वन रजिस्टर. वी आर हैविंग वन रजिस्टर दैट इज कॉल्ड IX. इंडेक्स रजिस्टर की शॉर्ट फॉर्म क्या है? वी कॉल index register class IX, and let's assume class the value in the index register was 2. The value in the index register class was 2. ठीक है? तो अब मैंने क्लास यहां पे क्या लिखा? मैंने यहां पे लिखा एक स्टेटमेंट दैट इज कॉल्ड LDX. ठीक है? तो यू गाइज नो कि ये क्या कहलाता है आपके पास? ये क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड योर ऑप कोड. दिस इज कॉल्ड योर ऑप कोड. ठीक है? एंड मैंने यहां पे क्लास क्या किया? मैंने यहां पे बोला हैश 1002. मैंने यहां पे क्या बोला? 1002. तो क्लास LDX इज जनरली यूज क्लास फॉर इंडेक्स एड्रेसिंग. सो अब इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर क्लास क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है. बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है क्लास. whenever index addressing is involved, whenever index addressing class involved, we always create a new address. क्या करते हैं हम लोग? We always create a new address. Now how we are going to create a new address? The formula for calculating the new address is new address is equal to address plus value of IX. खत्म. This is the formula class for calculating the new address. तो आप लोग मुझे बताएं जरा न्यू एड्रेस के अंदर what is the value for address? एड्रेस की वैल्यू क्या है? We know एड्रेस की वैल्यू is given, that is 1002. एड्रेस की वैल्यू क्या गिवन है हमें? 1002. And what is the value class of IX? What is the value class of IX? The value of IX class is 2. So 1002 class plus 2, the new address will be 1004. तो क्लास अब हम लोग क्या करेंगे? We are going to move towards the new address. We are going to move class towards the new address, and we are going to copy the contents of the new address in our only register that is called accumulator. So accumulator में क्या आ जाएगा? 1007.
1007. So class, this is called index addressing. So whenever index addressing is involved, you are just going to create a new address. क्या करेंगे आप लोग? You are just going to create a new address. ठीक है, आप लोग एक नया एड्रेस क्रिएट करेंगे and you are going to move towards that new address and you are going to copy the contents of the new address in your accumulator. ठीक है, so मैं इसको क्लास वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखवा देता हूं ताकि अगर एग्जाम में कभी एक्सप्लेनेशन के लिए आ जाए तो आप लोग आराम से इसको एक्सप्लेन भी कर सकें. ठीक है, so in index addressing, we create a new address. We create a new address, and class, the formula for the new address is plus value of ix. ठीक है, copy the contents of this new address to accumulator. So class, this is called your index addressing. This is called your index addressing. हमने यहाँ पे क्लास इंडेक्स एड्रेसिंग देखी, हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग देखी, हमने यहाँ पे डायरेक्ट एड्रेसिंग देखी, हमने यहाँ पे इमीडिएट एड्रेसिंग देखी, हमने यहाँ पे, एंड वी हैव आल्सो सीन अ फ्यू पॉइंट्स अबाउट द असेंबली लैंग्वेज. ठीक है, बिल्कुल अर्शद, द वैल्यू ऑफ ix विल बी ऑलवेज गिवन. देखो सिंपल है यहाँ पे बेटा, इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर आप हमेशा जब भी इंडेक्स एड्रेसिंग आए तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू एड्रेस. ठीक है, you are always going to create a new address, and what will be the formula for that address? जो पुराना एड्रेस है plus the value of ix, and this value of ix will be given. बिल्कुल, without that how you can create a new address. ठीक है, और जो भी आपका नया एड्रेस बनेगा आप उस नए एड्रेस पे जाएंगे और उस नए एड्रेस के कंटेंट्स को क्या कर देंगे, आप कॉपी कर देंगे इन योर एक्यूमुलेटर. यू आर गोइंग टू कॉपी दैट वैल्यू इन योर एक्यूमुलेटर. अब क्लास आप लोग के सवालों के ऊपर आते हैं. कि वन ऑफ द क्वेश्चन क्लास रमल इज आस्किंग कि सर ये एलडीडी, एलडीएक्स, एलडीएम ये हमें गिवन होगा, ये डिफरेंट होंगे, ये क्या होंगे, ये याद करने होंगे? यू गाइस आर मस्ट बी वंडरिंग. तो मैंने क्लास स्टार्टिंग में आप लोग को बता दिया था कि यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस स्टफ. आपको ये चीजें याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बिकॉज every time a question appears in the examination, these values are already given to you. ये आपको क्लास पहले से गिवन होंगी, आप लोग को जस्ट टेबल में से देख के ट्रेस आउट करना होगा. एंड क्लास विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर फर्स्ट क्वेश्चन. लेकिन अगेन रिमेंबर, अभी मैंने आप लोगों को 4 एड्रेसिंग मूड्स पढ़ाए. कौन कौन से? इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इंडेक्स. ठीक है, अभी भी क्लास हमारे पास यहाँ पे 2 एड्रेसिंग मोड्स फर्दर रहते हैं. वन क्लास इज कॉल्ड रिलेटिव एड्रेसिंग एंड द अदर वन क्लास इज कॉल्ड सिंबॉलिक एड्रेसिंग. ठीक है, लेकिन क्लास इन दोनों को पढ़ाने के लिए आपको पहले थोड़े से कुछ क्वेश्चंस को गो थ्रू करवाना पड़ेगा ताकि आप लोग की फर्दर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक दैट इज असेंबली लैंग्वेज डेवलप हो. ठीक है, तो लेट्स सी क्लास, मैंने यहाँ पे आप लोग के सामने एक क्वेश्चन ओपन किया. And where is my college? Hi, bro. ओके, 2 मिनट के लिए आप लोग अपनी आंखें भी बंद कर लें. मैं जल्दी से ये डिलीट कर दूं सब.
Perfect. So class, this is on your past paper booklet, paper 1. Question number, page number 5. आप लोग के पास ये available है question. And this question class is of assembly language. ठीक है? This question is of assembly language. Page number 5. Variant is specimen paper 2015. ठीक है? अब क्लास देखेंगे आप लोग को यहाँ पे एक टेबल गिवन है, and this table is always provided in the examination. आपको हमेशा ये टेबल प्रोवाइडेड होगा इन द एग्जामिनेशन. सो लेट्स सी ये हमें टेबल क्लास क्या क्या बता रहा है. ये बता रहे द ऑपकोड फॉर एलडीडी इज डायरेक्ट एड्रेसिंग. एसटीओ क्लास एक ऐसी स्टेटमेंट आ गई जो हम लोगों ने अभी तक देखी नहीं थी. अब क्लास देखें, व्हेनेवर अ स्टेटमेंट कम्स इन असेंबली लैंग्वेज, उसकी एक्सप्लेनेशन आपको गिवन होगी, उसकी वर्किंग, उसकी एक्सप्लेनेशन इट विल बी गिवन टू यू. ठीक है? सो मैंने क्लास यहां पे देखा द मैकेनिज्म, द वर्किंग वॉज, एसटीयू के बारे में बता रहा था. द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर. एक्यूमुलेटर के जो भी कंटेंट्स हैं, एक्यूमुलेटर में जो भी कंटेंट्स हैं उनको स्टोर कर दो एट द गिवन एड्रेस. तो आपको जो भी एड्रेस गिवन होगा, जो भी आपके पास एक्यूमुलेटर में रखा हुआ है, उस एड्रेस के ऊपर क्या कर दें, स्टोर कर दें. दिस इज अपोजिट ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग. दिस इज अपोजिट ऑफ डायरेक्ट एड्रेसिंग. अच्छा जी, फिर उसके बाद बता रहे क्लास एलडीआई इनडायरेक्ट एड्रेसिंग है, एलडीएक्स इंडेक्स एड्रेसिंग है, इंक का मतलब बता रहे क्लास को कि ऐड वन टू द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर. तो अगर आपका एक्यूमुलेटर जो है वो 22 है, इफ योर एक्यूमुलेटर इज 22, तो क्लास आफ्टर दिस स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 23. ठीक है? और एक और स्टेटमेंट बता रहा है यहाँ पे एंड. तो एंड का मतलब बता रहे क्लास के एंड कर देना और सब खत्म कर देना भाई. ठीक है? एंड का मतलब बता रहे कि भाई सब एंड कर देना और सब खत्म कर देना. ठीक है, फाइन. तो हमने बोला भाई चलो स्टार्ट करते हैं इसको जरा यहाँ पे. और सबसे पहली स्टेटमेंट बोल रहा है क्लास राइट ऑन डायग्राम टू एक्सप्लेन द इंस्ट्रक्शन, show the contents of the accumulator after the execution of the statement. LDD 105. LDD class is direct addressing. LDD is direct addressing. अब आपको क्लास यहाँ पे LDD परफॉर्म करना है. अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को LDD परफॉर्म करना है. LDD is direct addressing and I can see multiple answers. आप बच्चों ने बहुत सारे आंसर्स करना स्टार्ट कर दिए and you guys are giving right answers. तो क्लास डायरेक्ट एड्रेसिंग के अंदर क्या होता था, हम उस एड्रेस के ऊपर क्या करते थे, मूव करते थे. ठीक है? तो क्लास मैं मूव करवा के लेके गया 105 के पास आपको. दिस वाज 105. दिस वाज 105. और क्लास 105 में जो भी रखा हुआ है आपके पास, whatever the value is, that value class is going to be copied. That value class is going to be copied in my accumulator. So the result will be 0 0 0 1 0 0 0 1. Perfectly defined class, 2 marks. ठीक है? Perfectly class defined and you will be getting 2 marks for this. अब हम लोग क्लास थोड़ा सा और आगे बढ़े यहाँ पे एंड लेट्स सी. अब ये बोल रहा है क्लास आप लोगों को यहाँ पे LDX. मैं ऊपर गया, मैंने बोला भाई LDX क्या है, भाई LDX क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स एड्रेसिंग. मैंने बोला हाँ सर ने बताया था इंडेक्स एड्रेसिंग के अंदर नया एड्रेस बनाते हैं. तो मैंने यहाँ पे चेक किया क्लास व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर. और मुझे ये बताएंगी आमना बेटा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर. बेटा जरा बताएं मुझे यहाँ पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंडेक्स रजिस्टर. ये तो पूरी क्लास का जवाब आ जाना चाहिए था. व्हाट इज द वैल्यू क्लास ऑफ इंडेक्स रजिस्टर. ठीक है तमीमा, रमल, यू गाइस आर आंसरिंग. मैं चाह रहा था कोई पर्टिकुलर बच्चे जिससे पूछा है मैंने वही बच्चा बताए मुझे, तो आई विल बी रियली हैप्पी. और हम ताहिर आप भी बता सकते हैं मुझे यहाँ पे. और हम ताहिर आप भी मुझे बता सकते हैं. आयशा बेटा आई एम आस्किंग फॉर द वैल्यू, डायनरी वैल्यू. ठीक है, नॉट द बाइनरी वैल्यू.
बाइनरी वैल्यू तो मेरे सामने लिखी हुई है, मुझे तो डायनरी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ऑलमोस्ट क्लास मेरे पास पूरी क्लास ने जवाब दे दिया, लेकिन आमना ने हमें जवाब नहीं दिया। चले लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो क्लास द वैल्यू विल बी 3, ठीक है, द वैल्यू विल बी 3। अब नया एड्रेस कैसे बनाए भाई, 101 प्लस 3 प्लस 3, तो क्लास द न्यू एड्रेस विल बी 104। तो क्लास आप लोग को मैंने क्या बताया था, मैंने सर आपने बताया था भाई वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द न्यू एड्रेस and copy the contents of the new address in our accumulator। तो मैंने क्लास ये contents copy कर दिए in my accumulator, that was 0 1 0 1 1 1 0 1, and class examiner is awarding you 4 marks for this। मैंने एक ज्यादा लगा दिया कुछ, 3 104 सही तो किया मैंने, ठीक है। अच्छा आपने शायद गलत किया हो, ठीक है। सो क्लास एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 4 मार्क्स फॉर दिस स्टफ, ठीक है। अब क्लास जब मैंने ये क्वेश्चन करवाया, वन ऑफ माय कॉलेजेस, एक कॉलेज में मैंने जब क्वेश्चन कराया, तो एक बच्चे ने जवाब बोला कि सर ये तो एग्जामिनर नंबर बांट रहा है सर, ये तो नंबर एग्जामिनर जो है नंबर ऐसे ही दे रहा है, ये तो इतना आसान सवाल है। तो मैंने उस बच्चे को जवाब दिया, बेटा ये आसान सवाल आप लोग के लिए अब हुआ है, अगर आप पहले विदाउट हैविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेक्स एड्रेसिंग अगर ये आप सॉल्व करने जाते तो यू शुड बी ब्लैंक, आपको समझ में नहीं आता, आपको पता ही नहीं चलता भाई इंडेक्स एड्रेसिंग है, इंडेक्स रजिस्टर है, हाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द न्यू एड्रेस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो क्लास just because of your concepts are clear now, that's why this question is looking very easy to you, ठीक है। चलें आगे बढ़ा क्लास हम लोग यहाँ पे अब, और अब आपके पास एक सवाल आ गया क्लास, दिस क्वेश्चन इज ऑफ ट्रेस टेबल, एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 5 मार्क्स, ठीक है। तो क्लास जब भी ट्रेस टेबल का क्वेश्चन आ जाए, मैं आप लोग को हमेशा एक ही एडवाइस करूंगा, इस ट्रेस टेबल के अंदर कभी होशियारी नहीं दिखाते, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, वी नीड टू मूव स्टेप बाय स्टेप, कोई होशियारी नहीं दिखानी, ठीक है, कोई एडवांसमेंट, कोई ऐसी चीज नहीं दिखानी, जस्ट स्टेप बाय स्टेप मूव करें, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट मूव करें एंड यू विल बी परफेक्टली फाइन, ठीक है। तो मैंने मूव करना स्टार्ट किया, सबसे पहले हमें यहाँ पे बोल रहा है एलडीडी 507, तो एलडीडी क्लास इज एक्चुअली डायरेक्ट एड्रेसिंग, तो मैं क्लास यहाँ पे मूव कर कर आया 507 के ऊपर। तो 507 पे क्लास मेरे पास क्या रखा हुआ था, द वैल्यू वाज 22, तो क्लास दिस वैल्यू विल बी कॉपीड इन माय, दिस वैल्यू क्लास विल बी कॉपीड इन माय एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो यही तो है डायरेक्ट एड्रेसिंग कि व्हाटएवर द कंटेंट्स आर गिवन एट द गिवन एड्रेस, दोस कंटेंट्स आर कॉपीड इन आवर एक्यूमुलेटर, ठीक है। So class I copied 22 in the accumulator. After this class examiner is saying increment, तो increment class क्या करता है, एक प्लस कर देता है accumulator के अंदर, अगर नहीं याद आ रहा पढ़ ले ऊपर जाके, add 1 to the contents of accumulator, तो class मैंने add 1 किया, now the contents of accumulator are 23। मैं आगे बढ़ा, अब ये बोल रहा है क्लास STO 509, तो STO 509 क्या था, मैं वापस ऊपर गया, स्टोर द कंटेंट्स ऑफ एक्यूमुलेटर, तो मेरे एक्यूमुलेटर में क्या है भाई 23 है, एट द गिवन एड्रेस, तो एड्रेस क्या गिवन है 509, ठीक है। तो मैंने क्लास क्या किया, 23 सेव कर दिया, 509 के ऊपर मैंने क्या सेव कर दिया, मैंने 23 सेव करवा दिया। अब ये बोल रहा है क्लास लोड 508, तो मैंने चेक किया क्लास 508 पे क्या रखा हुआ था, 508 पे रखा हुआ था क्लास 170, तो क्लास दिस विल बी कॉपीड इन माय एक्यूमुलेटर। नाउ क्लास एग्जामिनर इज सेइंग इंक्रीमेंट, तो क्लास दिस विल बिकम 171। नाउ क्लास एग्जामिनर इज सेइंग इसको स्टोर कर दो 510 के ऊपर, तो क्लास 171 510 के ऊपर मैंने स्टोर कर दिया, एंड नाउ एग्जामिनर इज सेइंग क्लास end to end class our question is completed and we are given 5 marks,
ठीक है, ओके। हम सब बिल्कुल प्रीवियस वाले आपके पास सिनेरियो के अंदर, इन द प्रीवियस सिनेरियो यू हैव टू ड्रॉ एरोस, ठीक है, कि उसमें यहाँ पे लिखा हुआ था राइट ऑन डायग्राम टू एक्सप्लेन, ठीक है। So that's why we have to draw the arrows in this question बेटा particularly, ठीक है। अच्छा जी, we have one more question हमारे पास यहाँ पे क्या नाम है, हादी ने सवाल किया कि सर 509 क्यों 7 क्यों नहीं। बेटा देखो यहाँ पे लिखा है ना इसने, लेट मी अगेन, देखिए ट्रेस टेबल बड़ा आसान है यहाँ पे, मैं एक दफा वापस से री एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहली स्टेटमेंट क्या थी, लोड 507, मैं 507 के ऊपर आया, क्या रखा हुआ था, आई वॉज हैविंग 22, मैंने 22 कॉपी कर दिया एक्यूमुलेटर के अंदर, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है इंक्रीमेंट, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 23 कर दिया भाई। इसके बाद बोल रहा है स्टोर 509 के ऊपर, बोला जो भी एक्यूमुलेटर में वो 509 पे स्टोर कर दो, तो एक्यूमुलेटर में क्या था 23 था, मैंने 509 पे कॉपी कर दिया। तो 509 बोले यहाँ पे हमें, हमारे पास क्या नाम है आपका बेटा हादी, 509 बोले तो 509 पे कॉपी करूंगा ना मैं, 507 पे क्यों कॉपी करूंगा, जिस एड्रेस पे बोला उसने कॉपी करने के लिए मैं तो वही कॉपी करूंगा। इसके बाद बोल रहा है लोड 508, तो 508 में क्या रखा हुआ था 170, मैंने लोड करवा दिया इसको एक्यूमुलेटर के अंदर। इसके बाद बोल रहा है इंक्रीमेंट, मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 171। अब ये बोल रहा है स्टोर एट 510, तो क्या एक्यूमुलेटर में क्या रखा हुआ था, द वैल्यू इन द एक्यूमुलेटर वाज 171, आई कॉपीड दैट वैल्यू इन माय गिवन एड्रेस दैट वाज 50510, ठीक है। सो दिस वाज क्लास अगेन वन ऑफ द क्वेश्चन, एक अभी हम लोगों ने क्वेश्चन परफॉर्म किया है। दिस क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 11 मार्क्स, 11 मार्क्स का क्वेश्चन था क्लास, एंड आई होप आप लोग को इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों ने फेस नहीं करी होगी, और अगर करी भी है, अगर आपने क्लास करी भी है तो नो इश्यूज एट ऑल। आप लोग अभी हम लोग मल्टीपल क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे तो वो कंफ्यूजन ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, क्लियर अप हो जाएगी, ठीक है। सो आज हम लोग क्लास मतलब इसको यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे, ठीक है। चले, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।